And the most important reason why people may have sleep paralysis, alcohol and drugs abuse. Yes. वो मतलब कि अगर आप पी के सो रहे हो, like if you're sleeping in that high state, तो वो मतलब you have created 100% recipe for falling in sleep And paralysis. ultimately, if you go to see, everything that happens in sleep paralysis is directly attributed to how healthy your brain and mind is. How healthy your brain and mind is, and how healthy your sleep pattern is, हाँ, या मतलब sleep is. मतलब मैंने क्यों स्लीप पैटर्न अच्छा होगा तो ब्रेन एंड माइंड अल्टीमेटली हेल्दी होगा ही, इसलिए मैंने डायरेक्टली वो सोर्स को ही पकड़ा करेक्ट, हाँ. कि जितना हेल्दी ये है उतना कम chances of you having a sleep paralysis. The more agitated, crazy and overactive, hyperactive, underactive and stressed it is, the more chances of you getting sleep paralysis. Correct. आपके sleep में. So I think the best way is to avoid. So always prevention is better than cure. Sure. So prevention, I think पहले prevention discuss करना better होगा. Then we'll come to what you can do if you are in sleep paralysis. So how you can prevent sleep paralysis? जो तूने पहली चीज mention करी is अपना sleep pattern ठीक करो. ठीक करो. आड़े तेड़े नहीं सो, किसी दिन 10 बजे सो रहे हो, किसी दिन 3 बजे सो रहे हो. So try to maintain the same timing of sleeping and waking up. Just to add, अगर आप 10 बजे सो रहे हो तो 10 बजे ही सो, बट सपोज समडे यू नो कि आपको 3-4 बजे सोना है, so slowly start pushing that hour थोड़ा करके. I'm not saying 3-4 बजे सोना is a good thing, but someday you have work, you need to travel, you need to do something, but आप अपनी बॉडी को पहले से प्रिपेयर कर सकते हो. मैं पुशिंग कभी 10, साढ़े 10, 11, साढ़े 11 करते आप पुश करो. आप अगर सडन जग दोगे from 10 to 3, then it will trigger sleep paralysis very soon. देन सेकेंड चीज जो कि मैं डेफिनेटली बोलूंगी इज दैट डोंट लाइक खुद को इंटॉक्सिकेट करके मत सो. लाइक दैट इज समथिंग दैट कैन रियली ट्रिगर स्लीप पैरालिसिस, एंड अदरवाइज वी it can pull your vibrations down and it can put you in those lower astral planes when you are astral traveling. So before you go to bed, what plays a very important role is आप सोने से just पहले क्या कर रहे हो. That will decide on a lot of things, on how healthy your sleep is, where are you exactly astral traveling. So आपके सोने के पहले का जो time है, just make that routine good. Like pay attention to what you're watching, the what you're doing, what thoughts you have. So the best thing is meditate before you sleep. That will calm you down. लड़के झगड़ के नहीं सो, don't carry it to the next day. And these things I think play a very very important role. Try, if you already have sleep paralysis and अगर आपको भी तब होता है जब आप बैक पे सो रहे हो, try and just turn towards one side हल्का सा and sleep. So that can really avoid. That helped me a lot. So every time I sleep हल्का सा टेढ़ा होके, तो मुझे sleep paralysis नहीं होता था. अभी by God's grace नहीं होता है. You want to add anything? Yeah, I have to add a lot more actually. Then when you are going to sleep, make sure कि you have some healthy routine कुछ follow करो. For example, you can start journaling, drawing, meditating, listening to relaxing music. तो उससे क्या होता है कि आपका brain slowly basically जब सोने जाता है ना, आपका brain overactive नहीं होना चाहिए. It should be like peaceful होना चाहिए. Tension कल के लिए ढकेल दो, काम कल के लिए ढकेल दो. Slowly get into that sleeping mode. Then बहुत सारे टेक्निक्स हैं. फॉर एग्जांपल डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स हो गए, जो बाकी चीज़ों में जहाँ पे आपका बॉडी एंड माइंड दोनों काम हो जाता है बिफोर गोइंग टू स्लीप. जैसे शी सेड, डोंट ड्रिंक अल्कोहल एंड ऑल, बट अल्कोहल के साथ साथ कैफीन भी अगर आप कम कर दोगे, लाइक डोंट ड्रिंक टू क्लोज टू योर स्लीपिंग आवर्स, बिकॉज आपका ब्रेन उसमें हाइपर एक्टिव ही रहेगा, आपकी बॉडी भी हाइपर एक्टिव रहेगी एंड आपको सोने में टाइम भी लग जाएगा. प्लस अगर आप फोर्स करोगे तो स्लीप पैरालिसिस ट्रिगर होगा. दैट्स हाउ इट वर्क्स. हेवी मील्स मत खाओ सोने से पहले, बिकॉज जितना आप हेवी मील्स खाओगे उतना ज्यादा आपका स्टमक एंड आपकी बॉडी विल बी एंगेज्ड एंड आपकी बॉडी को उतना रेस्ट नहीं मिलेगा when you are going to sleep. There should be at least a 3-hour gap between आपका खाना, last meal, and you're going to bed. Secondly, the place where you are going to sleep, that should be adequate for proper sleeping. For example, it should be dark, it should be quiet, the temperature should be in a certain range. I think it is said that your temperature should always be between 18 to 22 degrees. That's the best way your body can come into calmness.
फिर अगर आपके आसपास वाईफाई है आपके सर के ऊपर तो वाईफाई हटा ओ दो यस, दूर से। वो रूम में एक्चुअली दूर होना चाहिए, वाईफाई आपके अराउंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड इवन द डायरेक्शन दैट यू आर स्लीपिंग इन मैटर्स, डज मैटर ओवर हियर। आप कोई भी डायरेक्शन में सो, जस्ट डोंट, योर हेड शुड नॉट बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ या while you sleep, क्योंकि वो जो मैग्नेटिक, हमारी बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जब वो इट सिंक में नहीं। या वो सिंक में नहीं होती है, वो रिपेल करती है, सो दैट डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, द ब्लड सर्कुलेशन, एवरीथिंग व्हिच कैन लीड टू स्लीप पैरालिसिस अगेन। या एंड सेकेंडली अगर आपका कुछ अगर आप में कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि स्लीप एपनिया करके एक स्लीप डिसऑर्डर है जहाँ पे जब आप सोने जाते हो तो आप प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं करते हो, एज अ रिजल्ट आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, देन अगेन ब्रेन पैनिक्स, हार्ट पैनिक्स एंड पूरे बॉडी को लग जाती है एंड स्लीप पैरालिसिस ट्रिगर हो जाता है। डॉक्टर को दिखाओ, गेट टू ट्रीटेड। मेनी पीपल हैव मेनी काइंड ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल नेक्रोलेप्सी हो गया, इंसोम्निया हो गया, वो सब चीजें you have to note it down. There is a lot more than just concluding अरे मेरे ऊपर डीमन बैठा हुआ था एंड मेरा लाइफ सोर्स सक करने की कोशिश कर रहा था. There is more to that than just demons and paranormal and everything. एंड हाईली रिकमेंड कि आप मेडिटेट करो, हाई डायमेंशन के चैनल पे बहुत कुछ है, आप मेडिटेट करो एंड देन आई थिंक देयर लॉट मोर अदर थिंग्स वी कैन डू। सो टू थिंग्स जो कि मैं सबको रिकमेंड करती हूँ इज एक ग्राउंडिंग एंड शील्डिंग, बिकॉज आपकी जब एनर्जी ग्राउंडेड होगी, आप जब शील्डेड होगे, तब इवन व्हाइल यू आर एस्ट्रल ट्रैवलिंग या फिर इवन इफ यू आर एक्सपोज्ड टू डिफरेंट इंटरडायमेंशनल बीइंग्स और व्हाटएवर, योर एनर्जी विल बी टेकन केयर ऑफ। आप ऑरा क्लेंजिंग करके सो, जिससे कि अगर नेगेटिव एनर्जी कुछ भी आपके ऑरिक फील्ड में है, अगर आप का मूड खराब है, आप लो फील कर रहे हो, कुछ भी ऐसा अगर आप फील कर रहे हो, दैट विल टेक केयर। सो एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस, ग्राउंडिंग, शील्डिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग, दीज टू थिंग्स आर मैंडेटरी, समझ लो। एंड ये ऑफ कोर्स ये हाई डायमेंशंस में आपको मिल जाएंगे दोनों मेडिटेशंस, यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट। सो बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं टू मेक श्योर कि आप स्लीप पैरालिसिस में ना जाओ, या अगर जा भी रहे हो तो स्नैप आउट हो जाओ। एक है ब्लैक टूरमैलिन, जो कि एक्सीलेंट है फॉर ग्राउंडिंग यू एंड फॉर आपका प्रोटेक्शन के लिए। ब्लैक टूरमैलिन, ब्लैक ऑब्सिडियन, दोनों मैं ये अपने फेवरेट्स बता रही हूँ, देयर आर मेनी दैट आर हेल्पफुल एक्चुअली। देन एमेथिस्ट एंड क्लियर क्वार्ट्ज है जो कि रियली हेल्प यू विथ, जो कि आपकी ब्रेन की एक्टिविटी है उसको सूद करने के लिए, काम करने के लिए, एंड टू मेक श्योर कि नाइटमेयर्स ना आए एंड आप स्लीप पैरालिसिस में ना फंसो। एंड ऑफ कोर्स सेलेनाइट है जो कि आपकी ऑरा को बहुत अच्छे से क्लेंस करता है। सो आपको, आप जब हाई डायमेंशंस में देखोगे, यू विल सी कि देयर आर लाइक सेलेनाइट रॉड्स। तो जैसे जैसे हमारे घर के बड़े नजर वगैरह उतारते हैं ना, उस तरीके से आपको बस वो अपने हाथ में पकड़ के, एंड यू हैव टू जस्ट मूव इट अराउंड यू विद एन इंटेंशन कि वो आपकी पूरी ऑरा एंड एनर्जी को क्लियर कर रहा है। Do this before you go to bed and you will definitely see the difference. और एक है, yes, which can be really helpful is labradorite, क्योंकि ये psychic attacks and इस तरीके की चीजों से, नाइटमेयर से भी बचा। हाँ, नाइटमेयर्स वगैरह सबसे प्रोटेक्ट करता है, और ये सब आपको thehigherdimensions.com में मिल जाएगा।